Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here we will look or we will start a new chapter of your SST book, chapter number 11, and this chapter is Our Water Resources. As the name suggests, about water. So, what are the things that we are covering in this class? We will see water. Where we can get water. First of all, water क्या होता है and where we can get water. हमें पानी मिलता कहाँ से, ठीक है, उसके सोर्सेस कहाँ से, ठीक है, कहाँ से पानी आ रहा है. We will see that thing. ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें जो पानी मिल रहा है वो कौन कौन सी जगहों से मिलता है, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के वी कैन सी टैंक से मिल रहा है, कैनल से मिल रहा है ना, वेल से मिल रहा है, हैंड पंप से मिल रहा है. ये सब जगह है जहां से वी कैन गेट वाटर. ओके, वी विल सी ऑल दीज थिंग्स एंड देन वी विल सी हाउ वी कैन कंजर्व द वाटर. we all know कि हमारे पास एक limited amount का water है. As we know 1 to 2% are there only fresh water in our earth. 1 or 2% ही हमारे पास fresh water है. So this is very little water that we are having with us. So it's important that we have to conserve it also. So we will see कि how we can conserve these water for our future generations. So okay, we will see the steps how we can conserve that water. Okay, we can use the water as much as you want. Don't overuse or don't waste the water. Okay, this is the main thing that is important. Okay, so let's see all these things in this class. Okay, so let's start our chapter number 11, our water resources. Okay, so let's start. Water is essential for all living beings. We all know water is very, very essential for all the living beings. We need water for drinking, cooking, washing clothes and many other activities. Farmer needs water to grow. So farmer को भी पानी चाहिए crops को grow करने के लिए. हम सभी को चाहिए. जैसे आपको चाहिए, animals को भी चाहिए, plants को भी चाहिए पानी, है ना? So हम सभी को, हम जितने भी living organisms हैं, उन सभी को पानी चाहिए. Okay, now we will see sources of water. Water हमें मिलता कहाँ से, ठीक है? So about 3/4 of the earth is covered with water. We all know कि 3/4 of our earth is covered with water. There are many sources of water. बहुत सारे water के sources हैं. Let's see one by one. First is rain. It is a main source of fresh water. Farmer depended upon the rainwater for the crops. We all know कि farmer किस पे depended है बेटा? रेन पे. बारिश होगी तो उनके क्रॉप्स ग्रो कर पाते. सो रेन उसका एक मेन रीजन है, ठीक है, बारिश. सेकेंड है ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर क्या है? जो हमारे जमीन के नीचे का पानी, अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर उसको बोल देते हैं. सो मच ऑफ द वाटर दैट फॉल सीप इनटू द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड ग्राउंड वाटर. जो जमीन के नीचे सोख लिया गया है पानी, जो हैंड पंप से हम जब करते हैं तो वो कहाँ से पानी आ रहा है? हैंड पंप से. ग्राउंड वाटर है. ओके, next ponds and lakes. So an area of water surrounded by land, it is called pond. Pond हमने सबने देखा, झील, तालाब, है ना? A lake is a bigger than a pond. Rainwater collects in ponds and lakes. So rainwater जो बारिश का पानी है वो lakes और ponds में collect होता है. Next is rivers. Rivers सबको पता है, rivers नदियां, है ना? गंगा रिवर, नर्मदा रिवर, है ना, ये सब. So rivers that originated in the mountains get water from the melting of snow and the rain. We know जो हिमालय से रिवर आ रही है, वो जो ग्लेशियर्स की स्नो है वो मेल्ट होती है, उसी की वजह से हमारे रिवर्स में पानी जाता है. So hence they can carry throughout the year. तो इसलिए उन जो हिमालयन रिवर्स है ना, उसमें पानी सालों साल रहता है, क्योंकि स्नो मेल्ट होती रहती है, वो पानी आपकी रिवर्स में जाता रहता है. कौन सी रिवर्स? जो हिमालय से ओरिजिनेटेड होती है, जैसे गंगा. ओके, Rivers that originated from the plateau get water only by the rain. जो रिवर प्लेट्यू से ओरिजिनेटेड हो रही है, जिसका रिवर से नहीं हो रही है, ठीक है, वी कैन से हिमालय से नहीं हो रही है, वो है प्लेट्यू, वी कैन से प्लेट्यू वाली रिवर. जैसे आपकी नर्मदा, ताप्ती, है ना, ये महानदी, ये सब प्लेट्यू से ओरिजिनेटेड हो रही है. सो ये रेन पे डिपेंड करती है. इसमें जितनी बारिश होती है उतना उस वी कैन से रिवर में पानी आता है. So they are mostly dry up during summer. So ज्यादातर समर्स में कुछ रिवर्स ड्राई हो जाती है, क्योंकि उसमें तो बारिश होगी तो पानी आएगा, है ना. So next है sea and oceans. इसमें भी आपको पानी मिलेगा, है ना. So most of the water on the earth
is in the sea and ocean. ज्यादातर अर्थ का पानी या तो सी में है या तो ओशंस में है. However, this water is salty and cannot be used for cooking or irrigation. We know कि ये जो पानी है ना, जो सी एंड ओशन में होता है, ये ज्यादातर सॉल्टी है, इसको हम पी नहीं सकते. So they are the salty water. Okay? So कुछ पानी के सोर्सेस आपको पता लगे, रेन के है, ग्राउंड वाटर्स है, ओशंस है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, ये जगहों से आपको पानी मिलता है. सबसे इंपॉर्टेंट तो रेन है. बारिश से ही आपका लेक्स में, पॉन्ड में, ओशन में, सी में, रिवर्स में पानी आता है. क्लियर? ओके. नाउ वी विल सी मीन्स ऑफ इरिगेशन. सो यही पानी को हम इरिगेशन, खेती में कैसे यूज करते हैं, है ना. लेट्स सी वन बाय वन. To grow crops, farmer need sufficient and timely supply of water. Of course, we can say crops को grow करने के लिए सबसे important चीज, देखो sunlight तो उसको sun से मिल जाएगी crops को, but पानी तो farmers को ही देना पड़ेगा. So farmer के लिए irrigation बहुत important है. This is possible only through irrigation. There are different means of irrigation in India. अलग अलग टाइप की irrigation system. Irrigation means पानी को distribute करना, पानी पहुंचाना crops तक. This is known as irrigation. फर्स्ट बेटा, या तो वेल्स या ट्यूबवेल्स का यूज कर सकते हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये सब आपने गांव में देखा होगा, है ना. सो वेल्स एंड ट्यूबवेल का यूज कर सकते हैं. इन रूरल एरियाज पीपल डिग वेल्स टू ब्रिंग अंडर वाटर टू द सर्फेस. ऑफ कोर्स वी कैन से वेल्स वगैरह डिग करते हैं जिसकी वजह से अंडर वाटर को वो यूज कर पाए, जो ग्राउंड वाटर है उसका यूज कर पाए. वाटर इज ड्रॉन यूजिंग अ पर्शियन व्हील जो देखते हैं ना, जैसे कुएं से पानी कैसे निकालते हैं, ठीक है. सो समटाइम ग्राउंड वाटर लाइज एट द ग्रेट डेप्थ. इन सच केसेस अ डीप होल इज डग. कभी कभी ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जाके मिलता है, तो उतना नीचे तक उनको गड्ढा करना पड़ता है ना. अ ट्यूब इज sunk in the hole and water is brought by using the electric pump. और इलेक्ट्रिक पंप से मोटर्स वगैरह यूज करके हम अंडरग्राउंड वाटर का यूज कर पाते हैं. सच एज वेल्स आर कॉल्ड ट्यूबवेल्स. वेल्स ट्यूबवेल्स का यूज किया करते हैं. दे आर वाइडली यूज इन द पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड गुजरात में आपको कुएं और ट्यूबवेल्स का यूज ज्यादा मिलता है. ओके. नेक्स्ट है, कुछ ऐसे कैनल्स बना रखे होते हैं, कैनल्स. ओके. इन द नॉर्दर्न एंड द कोस्टल प्लेन्स स्मॉल चैनल्स आर डंग टू टेक वाटर फ्रॉम द रिवर्स टू द फील्ड. रिवर्स का ही पानी यहाँ पे छोटी छोटी कैनल्स बना दिया जाता है जिसकी वजह से उनको मिल जाते हैं क्रॉप्स को पानी. सो ये भी एक सिस्टम है. नेक्स्ट है टैंक्स. बड़े बड़े ऐसे टैंक्स बना रखे होते हैं, दे आर नोन एज टैंक्स. सो इन द सदर्न प्लेट्यू द लो लाइंग एरियाज गेट वाटर फिल्ड विद वाटर ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. ऑफकोर्स जब बारिश होती है ना, तो ये कैनल्स में, टैंक्स में पानी ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाता है और यही पानी को फिर क्रॉप्स में दिया जाता है. ओके. देयर आर कॉल्ड टैंक्स. टैंक इरिगेशन इज मोस्टली प्रैक्टिस इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका. सो वी कैन से साउथ के एरियाज में टैंक सिस्टम होता है, कर्नाटका, तमिलनाडु वाले रीजन में. नेक्स्ट है स्प्रिंकलर्स. स्प्रिंकलर्स की फोटो यहाँ नहीं दे रखी. स्प्रिंकल्स कैसे आपने देखा होगा, खेती में ना ऐसे स्प्रिंकल लगा दिया जाता है, फुवारे टाइप के, वो है, ठीक है. सो इन स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर फ्रॉम द पाइप इज स्प्रेड इनटू द एयर. ठीक है, जैसे आपने फुवारे देखे ना, वही होता है. इट फॉल ऑन द प्लांट लाइक रेन. ये बारिश की तरह ऐसे प्लांट पे गिरते हैं ऐसे, ठीक है, फाउंटेन टाइप के. इट इज मोस्टली पॉपुलर इन राजस्थान, हरियाणा, एमपी में ज्यादा पॉपुलर है ये. क्लियर? नाउ वी विल सी डैम्स. बड़े बड़े डैम्स भी बनाए जाते हैं. इनका क्या काम होता है? लेट्स सी. अ डैम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू ब्लॉक द फ्लोइंग वाटर. मींस ये ना बीच में फ्लोइंग वाटर के ऐसे बीच में बना दिए जाते हैं ताकि पानी फ्लो ना करे, तो बीच में डैम बना दिया जाता है. सो दिस वाटर इज स्टोर्ड is an artificial lake called reservoir. और ना फिर एक artificial lake सी बना दी जाती है, इसको reservoir बोलते हैं. Okay? Created behind the dam. So dam के पीछे एक reservoir बना दिया जाता है, ठीक है. The stored water is taken to the fields through the canals. Of course ये पानी, डैम का पानी कैनल्स से fields में लेके जाया जाता है. A dam called multi-purpose project because it is used for many ways. और इन्हीं डैम्स का बहुत सारी जगहों पे यूज किया जाता है. वो कौन कौन सी जगहों पे है? लेट्स सी. फर्स्ट है, in a dam water is filled to fall from a great height. The force of falling water is used to generate hydroelectricity. Of course जो डैम का पानी है ना, वो काफी हाइट से दिया जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाती है. दिस इज नोन एज हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. ओके. नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन. इरिगेशन के लिए भी पानी मिलता है. नेक्स्ट है, इट कंट्रोल फ्लड. फ्लड को भी कंट्रोल करता है डैम्स. ओके. चलिए,
So there are many multi-purpose projects in India. कुछ multi-purpose dams है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. Let's see one by one. Bhakra-Nanda Dam that is built in Satluj River. So Bhakra-Nanda Dam Satluj River पे है. Damodar Valley project built on Damodar River. Damodar से Damodar River याद रखिएगा. सरदार सरोवर डैम बिल्ड ऑन नर्मदा रिवर. सो सरदार सरोवर डैम जो गुजरात में है वो नर्मदा रिवर पे है. एंड द मेथुर डैम वो जो केरला में है वो कावेरी रिवर पे है. ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा डैम कौन सी रिवर पे है. Clear? These are the things that are important for you. Okay? Now you're getting all my points? All points are clear to you? Okay. I'm hoping this chapter is totally clear to you. Let's move on question and answer part. Okay? Let's see question and answer. Okay? Starting with the first one. First one, as we all know, it's MCQ based questions. Starting with the first one. Which of these is the main source of fresh water? Fresh water आपको कहाँ से मिलेगा? लेक से मिलेगा. सबसे मेन सोर्स फ्रेश वाटर का तो रेन है, बारिश. ठीक है, बारिश से ही आपका वो लेक में पानी जाएगा, पॉन्ड में जाएगा, रिवर्स में जाएगा, है ना. इन विच ऑफ दीज स्टेट्स टैंक इरिगेशन, टैंक वाला इरिगेशन ज्यादातर साउथ में किया जाता है, कर्नाटका केरला हमने पढ़ा था. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज वॉल बिल्ड अक्रॉस अ रिवर? जो वॉल बनाई जाती है वो क्या है? वो डैम्स है ना. नेक्स्ट, ऑन विच रिवर मेथुर डैम? ये तो अभी देखा हमने, कावेरी रिवर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट सम फिलअप्स आर देयर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज रेन वाटर दैट सीप इनटू द ग्राउंड एंड कलेक्ट देयर, इट्स नोन एज ग्राउंड वाटर. जो जमीन के नीचे वाला पानी है वो है ग्राउंड वाटर. नेक्स्ट, चैनल्स विच कैरी वाटर फ्रॉम अ रिवर्स टू अ फील्ड, इट्स नोन एज, क्या बोलते हैं इनको? कैनल सिस्टम. ओके, जो चैनल्स बना रखी होती है ना, जो वी कैन से रिवर से पानी लेके जो जाते हैं, कैनल्स है वो. ठीक है. नेक्स्ट है इन फिल इन द ब्लैंक इरिगेशन वाटर इज स्प्रे. कौन सा इरिगेशन? स्प्रिंकल इरिगेशन. नेक्स्ट है अ लेक बिहाइंड अ डैम, वो क्या है? रिजर्वॉयर है. और जो लेक, जो डैम के पीछे जो एक लेक सी बनाई होती है वो रिजर्वॉयर है, पूरा पानी का रिजर्वॉयर है. इसी रिजर्वॉयर से बहुत सारे कैनल्स लेके जाए जाते हैं जो इरिगेशन में हेल्प करते हैं. क्लियर? नाउ वी विल सी अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर. चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बताइए. व्हाई इज वाटर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ? वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ बिकॉज वी नीड वाटर फॉर सर्वाइवल. दैट्स व्हाई वाटर इज इंपॉर्टेंट. ठीक, नेक्स्ट, लिस्ट 5 सोर्सेज ऑफ वाटर. ponds, river, lake, oceans and seas. यहाँ से मिलता है हमें पानी. नेक्स्ट, what are the difference between irrigation used in India? Different irrigation use. कौन कौन से irrigation methods है? wells, canal system, spray irrigation. So ये irrigations नाम लिख लोगे. How are dams useful to you? ये देखिए पूरा हमने बताया dams useful क्यों है हमें. electricity generation के लिए, flood control करने के लिए, irrigation के लिए, ये सब चीजों के लिए dam important. Getting my point? Clear? I'm hoping so. Chapter number 11 is totally clear to you. Yes, so that's all my dear kids for this class. I will meet you in your next class. Revise this chapter well and I will meet you in your next class. Till then, take care of yourself. Bye-bye.